ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਕਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਫੜ ਕੇ ਵੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਗਰੀ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਆ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੂਰਤਾਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਲ ਖੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ਨਗੀਨੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਨਤੀਜੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥਿਰਕਦੇ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੜਕਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲੂ ਮੂਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖੇ। ہمارے دماغ میں ایسے نیورونز ہیں یعنی نرو سیلز ہیں کثیر تعداد میں جن کو مرر نیورونز کہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ نیورونز تک میسج پہنچتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے۔ کہ اگر آپ شیم انڈیوسنگ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، چاہے وہ بہت ہی نیک نیتی سے پیرنٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ریزلٹس ہیں نا وہ نہیں جنریٹ ہو پاتے۔ اچھائی کی قوتیں اور برائی کی قوتیں ساتھ ساتھ اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہیں۔ نشے کا جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ ایکچولی اس کو فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معالج جو ہوتا ہے وہ روشنی کرتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ جب کسی کو یہ لگتا ہے نا کہ وہ خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ کافی ہے اور ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا، یہ جملے ہم سنتے ہیں اپنے پیشنٹ سے۔ بلکہ یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ یار کی یاری سے غرض، عیبوں سے کیا۔ مطلب کوئی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی یاری سے غرض ہے۔ جب تک وہ گھر اکوپ نہیں ہوگا یہ ہنر مندی سے، اسکل سے، اس وقت تک جو ہے یہ گورکھ دھندا چلتا رہے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ یاری قائم رکھیں گے لیکن دوست کی برائی کو نہیں اپنائیں گے۔ انسان بیسیکلی کانوں کا کچا ہوتا ہے۔ پاکستان سے چلتے ہیں جی کسی بہتر جگہ چلتے ہیں، یہ بہتر جگہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان بہترین جگہ ہے، پر وہ بہترین لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لیکن جہاں ریاست کہتی ہے کہ لڑکی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لڑکے کی لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کوئی وہاں سائنسدان ہے جو تجربات کر رہے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے۔ خط ملا ہمیں سہیل احمد صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے چونکہ یہ کہا کہ آپ میرا نام بھی لے سکتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے نام بھی جو ہے اس کو شامل کر رہے ہیں خط میں۔ وہ لکھتے ہیں، محترم ڈاکٹر صداقت علی، میرا نام سہیل احمد ہے، میری عمر 35 سال ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تقریباً ہر قسم کے نشے میں ڈوبا رہا۔ صاف ہو بھی جاؤں تو کچھ ہفتوں بعد پھر وہی ڈھلوان، اور سچ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے دوستوں کا بھی نشہ ہے۔ محفل میں جاتے ہی میں بدل جاتا ہوں۔ گروپ چیٹ پر ایک چل یار آج ملتے ہیں آتا ہے اور میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں۔ جو انکار کروں تو ہنسی اڑتی ہے۔ اب بڑا نیک بن گیا ہے، گھر یا دفتر میں قدم رکھوں تو لگتا ہے سب مجھے جج کر رہے ہیں۔ یہ شرمندگی مجھے واپس انہی یاروں کی طرف لے جاتی ہے جہاں بظاہر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، مگر وہی جگہ میری قبر خود کھود دیتی ہے۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچھی زندگی نہیں، قبولیت چاہیے،
चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि मेरा मसला सिर्फ दोस्तों का दबाव नहीं, ये नॉर्मल की जंग है। मेरे इर्द गिर्द जो आम है वो मेरे लिए जानलेवा है। मुझे एक ऐसा हलका चाहिए जहाँ सही काम पर दाद मिले और गलत पर मेहरबान रोक दें, और प्यार से बदलने के लिए नहीं, जहाँ एक आवाज़ कहे सुहेल हाथ रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, मैं आपके इलाज में आना चाहता हूँ मगर आपके डिसिप्लिन से डरता हूँ। डर इस बात का नहीं कि आपके असूल बहुत सख्त हैं, डर ये है कि कहीं मैं फिर नाकाम ना हो जाऊँ, कहीं आप सबकी नज़रों से भी गिर ना जाऊँ। फिर भी दिल कहता है शायद मुझे इस सख्त मगर सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है। मुझे रहनुमाई दीजिए, मैं अपने बिगड़े हुए यारों को दोस्तों में कैसे बदलूं? कौन मेरे लिए कोच बने? कौन मुझे हौसला अफजाई दे? मैं उनसे क्या कहूं? मेरा नया नॉर्मल कैसे बने कि महफिल बदल जाए ताकि मैं भी बदल जाऊं? अगर कोई यार ना बदले तो मैं महज़ब फ़ासला कैसे रखूं? करयूंग हो और नशे का जुनून बन रही हो तो मैं पहला फ़ोन किसको करूं? पहली जगह कौन सी हो जहां मैं पनाह लूं? पहला जुमला क्या कहूं? मैं थक गया हूं मगर हारा नहीं। अगर आप मेरा हाथ पकड़ लें तो मैं वादा करता हूं इस बार दोस्तों के दबाव के सामने आपकी तालीम व तरबियत को ढाल बनाकर दिखाऊंगा। बस मुझे वो रास्ता दिखा दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने आप से फिर सुरखरू हो सकूं। आपका मुंतज़िर सुहेल अहमद। सर, बड़े इसमें पहलू उभरते हैं। कहीं ना कहीं ये है कि वो कहते हैं कि मुझे कबूलियत चाहिए, फिर ये है कि घर में जज किया जाता है, फिर ये है कि उनको ये भी डर है कि कहीं आप ही जज ना करें कि वो इलाज में आए, और उनको ये है कि मैं सुरखरू ना हो पाया तो फिर क्या होगा, और फिर ये है कि क्रेविंग भी होती है, अब उसमें क्या किया जाए, नॉर्मल चीज़ों को किस तरह से बनाया जाए, कैसे चेंज किया जाए। तो एक ख़त है लेकिन पहलू इसके कहीं हैं। अब कहाँ से आगाज़ करें, दोस्तों से या अपने आप से? पहले तो हम दोस्तों और हवारियों की बात कर लेते हैं। आप यूँ समझें कि जैसे हैबिट्स और एडिक्शन में एक फ़र्क है छोटा सा, बाकी तो एक ही बात है कि हैबिट्स का सिर्फ फ़ायदा होता है जबकि एडिक्शन का वक्ती फ़ायदा और देर पा नुकसान होता है। इसी तरह दोस्तों और हवारियों में फ़र्क यह है कि दोस्तों का फ़ायदा होता है और जो हवारी होते हैं उनका फ़ायदा और नुकसान होता है। सर, हैबिट एडिक्शन की एक काम है कि कोई भी आदत जो है वो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। नहीं, ये बुरी आदत जो है ना, ये मिसनोमर है। मिसनामा। असल में बुरी आदत को इल्लत कहा जाता है उर्दू में, और अंग्रेज़ी में बुरी आदत को एडिक्शन कहा जाता है। तो असल बात यह है कि जैसे एक फ़र्क है इल्लत में और आदत में, इसी तरह एक फ़र्क है हवारी में और दोस्त में। दोस्त वो है जो आपका भला चाहता है और भला करता है, हवारी वो है जो आपकी बात मानता है, हाँ मैं हाँ आपको वैलिडेट करता है विदाउट बीइंग जजमेंटल। हाँ, हवारी का जो लफ्ज़ है ये हूर से है, और हूर के मतलब जो एक परसेप्शन है वो ये है कि वो हर बात मानने वाली होगी। जैसे लोगों को शिकवा होता है कि बीवियां नहीं मानती बात बल्कि मनवाने पे तुल जाती हैं। शुरू से ही हो गया। अच्छा, तो मतलब ये एक दुख है जो मर्दों को, नहीं, ये दुख है कि बीवियां बात नहीं मानती, ये मर्दों का सर, दुख है। बीवियों को भी तो दुख है कि मर्द बात नहीं मानते। वो भी अपनी जगह दुरुस्त बात है, क्योंकि लोग जब मियाँ बीवी बनते हैं तो वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे वो एक दूसरे का कोई उधार देना उन्होंने, और वो बिहेवियर ऐसे हो जाता है कि जो एक मुखलिसाना और खुशी देने वाला रवैया नहीं होता। जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे की इस्लाह करने लगते हैं, ये इस्लाह करने का रिश्ता नहीं है। इस्लाह करने का रिश्ता माँ बाप का औलाद की तरफ है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है इस्लाह का नहीं है। आप पहले देखभाल कर लें। तो क्या दोस्तों का रिश्ता जो इस्लाह का हो सकता है? दोस्तों का रिश्ता इस्लाह का नहीं होता, भले का होता है। यानी भले का रिश्ता होना और इस्लाह का रिश्ता। हम तो सर दोस्त उसको कहते हैं जो हमारी बात मानता है। नहीं, दोस्त वो होता है जो हमारा भला करता है, मुश्किल वक्त में काम आता है। ये दोस्त difference वो नहीं कैसे- होता जो इस्लाह करता है, वो तो बुरा लगने लगता है
اور دوست چونکہ ہاں میں لاتے ہیں، آپ کسی دوست کو کہ آئے یار چلنا، تو اٹھ کے چل پڑتا ہے. تو ہمارے تو یہ مت ہے، میرا مطلب دوست وہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو، دوست وہ جو مشکل میں کام ہے. لڑائی ہو جائے تو وہ فوراً پہنچ جائے بغیر جانے. ہاں مطلب بہت سارے گینگز جو ہوتے ہیں وہ دوست ہی ہوتے ہیں نا. جی مطلب جو ایک ٹیلی فون کھڑکتا ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، 15-20 لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کا آپس میں یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ صحیح یا غلط کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دھڑے کی بنیاد پہ چلیں گے. تو جو حواری ہیں وہ بھلا نہیں کرتے. اس کا مطلب وہ میرٹ پہ بلیو نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ یار کی یاری سے غرض، عیبوں سے کیا. مطلب کوئی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی یاری سے غرض ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کے عیبوں کے بارے میں اس طرح سوچیں گے تو کل کو ہم وہی کچھ کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ وہ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ نہیں وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ یاری قائم رکھیں گے لیکن دوست کی برائی کو نہیں اپنائیں گے. پر انسان بیسیکلی کانوں کا کچا ہوتا ہے، گلیبل ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کا اثر لینے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں ایسے نیورونز ہیں، یعنی نرو سیلز ہیں کثیر تعداد میں، جن کو مرر نیورونز کہتے ہیں، کہ جو دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، وہ نیورونز تک میسج پہنچتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے. یعنی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ بھی اسی پرنسپل پہ بیسڈ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے راستے پیغام جو ہے مرر نیورونز کو پہنچتا ہے. لہذا حواری جو ہیں ان کو یا تو دوستوں میں بدلا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک پروسیس ہے. اگر آپ کو بہت بھلا چاہتے ہیں، آپ دوست ہیں ان کے، اگرچہ وہ آپ کے حواری ہیں اور آپ ان کے دوست ہیں، تو پھر ایک پروسیس الگ موجود ہے جس کے تحت، اور بڑا شاندار پروسیس ہے، وہ بہت مقدس اور روحانی پروسیس ہے کہ اپنے دوستوں کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسے انٹریکشن میں رکھنا جس سے کہ اچھا پیغام ان تک بھی پہنچے. لیکن جب بندہ خود کمزور ہو تو ایسی ایفرٹ کرنا ذرا. سر کیا دوست جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں آپ کے؟ دوست ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز، تبھی تو وہ آپ کا برا بھلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کوئی دوست کوئی پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا، اور دوست اس کو کہتا ہے کہ تم پڑھائی پہ توجہ دو، اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم توجہ نہیں دو گے تو میں تمہارے والد کو بتاؤں گا، تو ایسا آپ نے کم ہوتے دیکھا ہوگا. زیادہ تر دوست جو ہیں وہ اپنے دوست کے فادر کو کچھ نہ کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انکل بہت اچھا بیٹا ہے، بڑا لائق بیٹا ہے، جی اوکے کی رپورٹ دیتا ہے، تو بڑا نیک ہے، داتا صاحب جانتا ہے کالج تو فارغ ہو کے روز. مطلب کچھ نہ کچھ وہ پازیٹیو رپورٹ دیتے ہیں. جیسے کوئی ایلیبائی چاہیے ہو کہ تم فلاں ٹائم پہ کہاں تھے، تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ تھے، کوئی نہیں سن رہے تھے ہم دونوں. یہ نا کہ لوگ جھوٹی جو ہے نا وہ گواہیاں دے دیتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ایک تو چوائس یہ ہے کہ آپ دوستوں میں بدل دیں حواریوں کو، لیکن دوسری چوائس ذرا شروع میں زیادہ پریفریبل اور آسان ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ان دوستوں سے پرہیز کر لیں. یعنی اپنی بیماری سے ریکوری تک، جب آپ کی ریکوری ذرا مضبوط ہو جائے تو پھر آپ ان سے دوبارہ میل جول بڑھا سکتے ہیں. کیا یہ کلیئرٹی آ جاتی ہے؟ کس بات کی کلیئرٹی؟ اسی بات کی کہ میں بیماری سے، کیونکہ کوئی بھی جو خاص طور پہ ایڈکشن کا مریض ہوتا ہے جس میں حواریوں کا بہت رول ہوتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. دیکھیں نا، ایک پہلو ہے نا جس میں دوستوں کے ساتھ معاملات بہت اہم ہو جاتے ہیں، اور یہ 16% انفلوئنس ہے دوستوں کا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کسی کے نشہ چھوڑنے کا. لیکن ایک 16% برابر کا جو انفلوئنس ہے منٹور کا بھی تو ہے، یعنی معالج کا بھی تو ہے، جو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ میں وہ اسٹرینگتھ آ چکی ہے یا نہیں آئی. کیا آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا، جنہیں ہم سٹینڈز کہتے ہیں. تو معالج سٹینڈز مقرر کرتا ہے فیملی کے ساتھ مل کے کہ ابھی وہ اسٹرینگتھ آئی ہے کہ نہیں آئی. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات چیت کرتے رہے ہیں پچھلے پروگراموں میں،
جس میں ول پاور کا رول بھی 16% ہے، جی اور جو اسکل پاور ہے کہ ہنر مندی کتنی ہے، علم کتنا ہے، اس کا بھی 16% ہے. اور اس کے علاوہ جو پھر انوینٹری بناتے ہیں روزانہ کی جو پروگرس ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج والے اوپر لے کے جاتے ہیں نمبر، نیچے لے کے آتے ہیں، تو یہ جو انوینٹری بنتی ہے جو مریض خود بناتا ہے اپنے معالج کی زیر نگرانی، اس کا بھی 16% رول ہے. پھر بے جان چیزوں کا رول بھی 16% ہے، جس میں کوئی جگہیں ہیں جو کہ ہیلنگ پلیسز ہوتی ہیں، اور کوئی جگہیں ہیں جو کہ بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں، یا کوئی گیجٹس ہیں، کوئی ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی پاپولر ایک اپلیکیشن ہے جسے واٹس ایپ کہتے ہیں. جی تو اگر واٹس ایپ اتنی کارآمد ہو سکتی ہے کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس نے، تو ایسی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو نشے سے بحالی کے لیے مانیٹرنگ میں مدد کرتی ہیں، اور وہ آپ کو وقتاً فوقتاً وہاں سے میسیجز آتے ہیں، عین اس ٹائم پہ میسیجز آتے ہیں جس ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی، کیونکہ آپ اپنا ڈیٹا اس میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کی یہ کیفیت ہے، آج آپ ایسا محسوس اے آئی کر رہے ہیں. جنریٹڈ جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ واقعی آپ کوئی ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ دفعہ دیکھیں آپ تو پھر وہ اس کی بھرمار ہو جاتی ہے. تو جب آپ ڈیٹا اپنا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی کریونگ ہوتی ہے یا مجھے ایسا ہوتا ہے، تو وہ روز تھوڑا بہت کلکنگ کرنی ہوتی ہے، پورا لکھنا بھی نہیں ہوتا کہ دیکھیں آپ کو آج کریونگ ہو رہی ہے، اس کی ریٹنگ کریں کتنی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اے آئی جنریٹڈ آپ کو ایڈوائس آتی ہے کہ آپ یہ کر لیں یا آپ وہ کر لیں، اور پھر واپس فیڈ بیک دیں. تو ایک آپ کا انٹریکشن جو ہے اس ایپلیکیشن کے تحت جو ہوتا ہے وہ بہت کارآمد ہے. تو 6 چیزیں ہیں جن کا ٹوٹل جو انفلوئنس ہے آپ کی ریکوری پہ وہ 96% ہے، اور اور 4% کیا ہے سر؟ وہ قدرت کے کرشمے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل. صرف 4%، اور ہم تو 96% شاید کہتے ہیں اللہ دی مرضی. نہیں، پر وہ 4% جو ہے وہ بہت کروشل ہے. وہ 4% جو ہے وہ 96% کے بعد ہے، وہ 96% سے پہلے نہیں ہے. وہ ہمیشہ اونٹ کو پہلے باندھنا ہے پھر توکل وہ کرنا ہے. 96% وہ کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں. اچھا، جو ہی آپ 96% کام کریں گے، اور اگر آپ نے 96% کام کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیر نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ ایسا کر گزریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو پھر آپ ذرا سوچ لیں کہ وہ جو فائنل 4% جو نتیجے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں، پر یہ 96% جو آپ کی ایفرٹس ہیں یہ پہلے کرنے کی ہیں. یہ اس کو آپ یہ جو 16% یہ سب کی، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے، ان کا نمبر ایک جیسا ہے، ان کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہے. جیسے معالج جو مینٹور ہے اس کا ویٹیج بھی 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اچھا، ول پاور کا بھی رول 16% ہے، لیکن اس کی اہمیت 16% سے کم ہے. جی. تو اسکل پاورز ہیں، تو ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے. یعنی آپ نے نئی زندگی بنانی ہے، آپ نے نئی زندگی جینی ہے، اور آپ نے ایک کامیاب زندگی جینی ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت زندگی جینی ہے. نشہ چھوڑنا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے بعد بندہ بیکار بیٹھا رہے. نشہ چھوڑنے والا تو ہیرا آدمی ہوتا ہے، یعنی تراشا ہوا ہیرا. لیکن اس کا وائٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جو نشے کا جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ ایکچولی اس کو فل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو خلا فل کرنا ہوتا ہے نا، اسی کے لیے تو یہ سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ ہنرمندی چاہیے، علم چاہیے، کمپنی بدلنے کی ضرورت ہے، ایک آپ کو مینٹور چاہیے، یعنی معالج چاہیے جو کہ تجربہ رکھتا ہو اس چیز کا، اور وہ آپ کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کراتا ہے. کیونکہ ویسے تو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ڈیلیبریٹ پریکٹس ہوتی ہے نا، ڈیلیبریٹ پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. اور ڈیلیبریٹ پریکٹس میں اور عام پریکٹس میں اگر آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یوں ہے کہ جیسے کوئی 2 لڑکے روز کرکٹ کھیلتے ہوں، ایک بالنگ کرتا ہو اور ایک بیٹنگ کرتا ہو، آرگومنٹ تو کرے گا. یہ پریکٹس ہے
इससे कोई पाकिस्तान की टीम में नहीं चला जाएगा। पाकिस्तान की टीम में जाने के लिए ज़रूरी है कि एक बॉलिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, और एक आला दर्जे का कोच खड़ा होकर दोनों को देख रहा है और दोनों को बता रहा है कि कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, मूवमेंट कैसे करनी है, जिस्म को कहाँ रखना है, कदम कहाँ रखने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आती है कि जब कोच देख रहा है और आप कोई काम कर रहे हैं। तो नशे की बीमारी में भी जब मरीज़ इलाज में होता है तो डेली उसकी फैमिली से मुलाकात होती है और डेली वहाँ बॉलिंग और बैटिंग चल रही होती है और जो कोच है वो देख रहा होता है और वो खाली मरीज़ को नहीं हदायत जारी कर रहा होता, वो फैमिली को भी बता रहा होता है कि यहाँ आपका जो एक्शन है या यहाँ जो आपकी बातचीत है ये ज़रा थोड़ी तो दुरुस्त करने की अल्टीमेटली ज़रूरत चाहते हैं कि कोच का फरीज़ा जो है वो फैमिली ले लें। अल्टीमेटली तो यही एम है, क्योंकि पहला जो अस्पताल है वो तो घर ही होता है, कई सालों तक घर में ही मसले को हल किया जा रहा होता है। लेकिन जब मसला बिगड़ता रहता है और मर्ज़ बढ़ता रहता है, जो जो दुआ करते हैं, तो फिर एक अस्पताल से बाजू का दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है ना, तो वो पहला जो अस्पताल है, जो घर का अस्पताल है, वहाँ से एक दूसरे अस्पताल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन मतलब है वापस कि- उसने पहले अस्पताल में आना होता है। इसका मतलब है कि जो घर है उसको इक्विप करना ज़रूरी होता है। जब तक वो घर इक्विप नहीं होगा ये हुनरमंदी से, स्किल से, उस वक्त तक जो है ये गोरख धंधा चलता रहेगा। ये बड़ा अजीम मंसूबा है कि किस तरह नशे की बीमारी एक फैमिली की बीमारी है और उसके अंदर जो नज़रियाती मसाइल हैं वो सदियों से चल रहे होते हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे होते हैं। इंसानों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि हर पिछली जो जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन को कुछ शेम देती है। आप यूँ समझ लें ये उनका कोई पता नहीं फरीज़ा है कि जो भी पिछली नस्ल है वो अगली नस्ल को बताती है कि तुम में वो बात नहीं है जो हम में थी, और कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज डिलीवर करना होता है जिससे उनका मकसद ये होता है कि वो तरक्की कर जाएं। अच्छा, वो तरक्की कर भी जाते हैं लोग जब माँ बाप शेम देते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ो, works तरक्की at करो, times. एंड इट वर्क्स, लेकिन सही इसके- तरीका नहीं है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। बहुत सारी You चीज़ें have to वर्क be करती हैं, motivational. बेशुमार तरीके दुनिया, बेशुमार चीज़ें हैं जो दुनिया में वर्क करती हैं, पर वो सही तरीका नहीं होता। उसका आखिरकार जो है नुकसान ज़्यादा हम तो होता सर है। नताइज पे जाते हैं। वी विल डू वट एवर वर्क्स। देखिए नताइज अहम है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन नताइज को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। ये मैनिपुलेशन है नताइज की। आप नताइज को फितरी तौर पर अपने हक में मोड़ सकते हैं बशर्ते कि आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस में जाएं और आपका तरीक़ेकार सही हो, सही तरीके से सही काम किया जाए और फिर उसका सही नतीजा निकले, ये इम्पोर्टेंट है। आपने कहा ना कि हर जनरेशन शेम, यानी उनकी जो पिछली जनरेशन है, पेरेंट्स जो हैं वो नए तरीक़ों से शेम इंड्यूस करते हैं, जिसका कि नतीजा डॉक्टर हमाद कह रहे थे रिज़ल्ट्स तो मिल जाते हैं। लेकिन अभी ये जो आपने बात की ना, सही तरीके से सही रिज़ल्ट जनरेट करना, ये बहुत लाजमी बात है, क्योंकि अगर आप शेम इंड्यूसिंग एटीट्यूड रखते हैं, चाहे वो बहुत ही नेक नीति से पेरेंट्स ये कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो रिज़ल्ट्स है ना वो नहीं जनरेट हो पाते। यानी वो जो एक सही प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनना है ना, शायद वो छोटे मोटे गोल्स जो हैं वो सेटल भी हो जाए, वो पैसे भी कमा ले, वो सब मिस कुछ मेरा करे। ये आप बहुत बात कर, लेकिन हमने सीखा ही ये होता है एज ए पेरेंट। हमारी जो तरबियत हुई होती है उसमें हम देखते हैं कि हमें ये कहा गया था और हम उसी तरह आगे ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट रियलाइजिंग के थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हम उस तब्दीली का हिस्सा नहीं बन पाते किसी तरह। नहीं बनते हैं हम हिस्सा। अब देखिए जैसे 50-60 साल पहले जब हमारा बचपन था तो पिटाई बहुत जेन्युइन तरीका था, नेक था बहुत। बेइज्जती के अलावा। बेइज्जती तो खैर हज़ारों साल से बहुत कहते टका के बेइज्जती की हुई ना, फिर बहुत नतीजा निकलता है, निकलता भी है। मैं आपको बताता हूँ कि उससे घुटन पैदा होती है, उससे फिर आखिरकार ख़राबी पैदा होती है, और वो जो पिटाई के वजह से नताइज निकलते हैं बच्चों के, वो भी निकलते हैं। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनी हुई देखते हैं
اور آپ اگر انہیں پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ابا جی کی پٹائی کا نتیجہ ہے. تو لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو پھر شیم اندر انڈیوس ہو جاتی ہے وہ کھلنے نہیں دیتی. دیکھیں اگر کوئی پھول بہت بھی خوبصورت ہو اس میں اور اس میں خوشبو نہ ہو تو پھر کوئی مزہ نہیں آتا. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے ایسے پھول ہیں جن کی خوشبو کو خاص نہیں ہوتی، لیکن کئی چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں جن کی خوشبو بہت خاص ہوتی ہے. جیسے موتیے کا پھول ہے، کتنا چھوٹا سا سائز ہے اس کا، لیکن اس کی خوشبو بڑی دور تک جاتی ہے. یہ دمار کی جگہ سے ہاں، یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ توجہ جو ہے توجہ بریک کی طرف آپ کی طرف آ جائے. کچھ جائے. ویسے ابھی آپ 40-50 سال پرانی بات کر رہے تھے تو ہمیں کمنٹ آیا ہوا ہے محمد اویس میر صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک حق سچ کی بات شعلے فلم کے دوست نے بھی کی تھی جب دوست کے لیے رشتہ لینے جاتا ہے. وہ بڑا زبردست سین تھا. تو لوگ جو ہیں وہ شو دیکھ رہے ہیں اور شو سے کنیکٹ کر رہے ہیں پوری طرح. تو اس کنیکشن کو ہم مینٹین رکھیں گے لیکن اس وقفے کے بعد. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہیں نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک. ہم پروگرام میں واپس آئے. بات آخری لفظ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم کنیکشن کو مینٹین رکھیں گے، تو بات وہیں سے آگے بڑھے گی. جو ہمیں خط آیا سہیل احمد صاحب کی طرف سے، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اب میرے لیے کوچ کون بنے، میرا فین کون ہو، اور ان سے میں کیا بات کروں، کیا کہوں. تو سر یہ کوچ کی ضرورت جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی کوچ ہو، کوئی ڈیلیبریٹ پریکٹس ہو، پھر ہم یعنی یہ فین جو ہے یا کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا وہ کون ہو اور ان سے کیا باتیں ہوں. یہ بڑی پروگرس نظر آ رہی ہے سہیل میں کہ یہ کوچ کی تلاش میں ہے. مطلب یہ بڑا انوکھی سی بات ہے. انوکھی سی بات ہے کہ کوئی بندہ ایڈکٹ ہو اور وہ کہے کہ مجھے کوچ کی ضرورت ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، انسائٹ آ چکی مجھے سہارے کی ضرورت ہے. وہ تو کہتا ہے مینوں سارا پتہ ہے تو میں ہر چیز کر سکنا. مطلب آپ حیران ہو گئے یہ سن کے کہ میں نے آج تک کوئی ایسا ایڈکٹ نہیں دیکھا کہ جو بے وقوف ہو یا ڈفر ہو. میں نے حد سے زیادہ عقل مند لوگ دیکھے ہیں جن کو ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے. لیکن حرکتیں تو ان کی بیوقوفی والی ہوتی ہیں، اپنی زندگی تباہ و برباد وہ کر بے لیتے ہیں. وقوفی نہیں ہوتی، وہ اس بیماری کی علامتیں ہیں. دیکھیں چونکہ ہم کچھ بیماریوں کی علامتوں سے بہت فیملیئر ہیں اور کچھ بیماریوں کی علامتوں سے ہم بالکل واقف نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو وامٹنگ ہوتی ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے، اور کھانسی کس بات کی، اور بلغم کس بات کی علامت ہے، اور بخار کس بات کی علامت ہے. لیکن ہمیں وہ علامتیں جو نشے کی بیماری سے ابھرتی ہیں ان کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا. ان کو ہم اخلاق کی برائیاں یا کردار کی خرابیاں سمجھتے ہیں. تو جو میں نے کہا ہے کہ ساری سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ساری ذہانتیں ہوتی ہیں. مت ماری جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی ذہین آدمی ہو بہت زیادہ تو اس کا بلڈ پریشر اونچا نہیں جا سکتا؟ کیا اس کو شوگر کا کرائسس نہیں ہو سکتا، ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی؟ اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اپنے ہی طور طریقے ہوتے ہیں، یہ بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں اور بڑی سیلف پرپیچویٹنگ ہوتی ہیں. لہٰذا جو میں آج تک جو بھی ملتا ہوں ان کے اندر یہ بہت ہوتا ہے کہ میں خود ہی ٹھیک کر سکتا ہوں. میں اگر اپنے آپ کو مطلب کوشش کروں
तो मैं अभी ठीक ही नहीं करना चाहता, मैं अभी 8-10 साल के बाद करना नहीं चाहता सर हूँ ठीक। उसको बीमारी की अलामत है कि जब किसी को ये लगता है ना कि वो खुद ही ठीक कर सकता है और वो काफ़ी है और अभी उसने फ़ैसला नहीं किया, ये जुमले हम सुनते हैं अपने पेशेंट से। लेकिन अगर कोई ये इस इंसाइट के साथ आ जाता है ना, उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है कि मुझे तो कोच की ज़रूरत है। देखिए मतलब ये होता नहीं है कि ये इर्द गिर्द का माहौल भी तो उसको बताता है कि तुम खुद कर सकते हो, नहीं देखो, ना करो। वो इसको इस तरह पता चलता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं हर काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो बड़े अनोखे काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें तो एडिक्ट हर रोज़ नशा कर रहा होता है, जो कि बड़ा मुश्किल है। चौमुखी लड़ाई करके वो नशा कर रहा होता है, उसमें रुपया पैसा चाहिए, उसमें प्राइवेसी चाहिए, उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तो बंदा नशा करता है। ऐसे हालात में जब वो एवरी डे नशा कर गुजरता है, बैग बारो और स्टील किसी तरह भी कर गुजरता है, तो उसको लगता है कि जेड़ा काम मैं करना हो ना मैं कर सकना। मतलब ये जो चीज़, जैसे अगर आप CEOs को देखें तो CEOs भी बीमार हो सकते हैं, वर्कहोलिक हो सकते हैं, और CEOs को भी ये खपत होता है वो या सब कुछ कर खपते सकते हैं। अजमत होता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं खुद एक CEO हूँ और मैं आपको बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में 15 बिल्डिंगें बनाई हैं, कभी किसी आर्किटेक्ट को हायर नहीं किया। मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। अच्छा, बिल्डिंगें बनाने के बारे में मेरा नज़रिया ज़रूर ये है, लेकिन खुदा ना खास्ता मुझे दिल का दौरा पड़े तो स्टेंट मैं खुद नहीं डालूँगा, क्योंकि अगर मैंने खुद स्टेंट डाले तो वो गले में फंस जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि बीमारियों के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में ये रिस्क लेना जो है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वैसे कोई छोटे मोटे काम, घर की कोई रिपेयर, कोई काम फंसे हो, मुश्किलात में से निकालना हो, तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सेहत का मामला हो, ख़ास तौर पर दिमागी सेहत का मामला हो या कोई भी सेहत का मामला हो, डायबिटीज़ हो, तो वहाँ आपको कोच की यानी डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर मरीज़ ये समझते हैं कि उनको किसी कोच वोच की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है, और वो बड़ी बड़ी दिलचस्प लॉजिक कर रहे होते हैं। शुरू में वो नशा छोड़ना चाहते हैं, वो नशा छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं, एक दिन के लिए, 2 दिन के कहते लिए। हैं मैं तो छोड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अभी करता रहता हूँ, फिर जब छोड़ना होगा तो छोड़ दूंगा। वो बड़ी बड़ी बेहतरीन ये बीमारी लॉजिक की लेके आते हैं। अलामत है, ये actually बीमारी है। ये बीमारी की अलामत है। जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि अब मैं रिट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूँ तो मुझे अपनी हमाकतों और मज़ीद हमाकतों पे बड़ी हैरत होती है कि मैं अब सोचता हूँ कि जो मैं आर्किटेक्ट हायर नहीं करता था इस ख्याल से कि मुझे सब पता है, तो उसमें मैं काफ़ी नुकसान उठाता था। कभी किसी चीज़ को बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, तो ये शुगल चलता रहता था। तो लेकिन मैं मशवरा दूंगा प्रोफेशनल्स के लिए आपको जो जिसका काम है ना उसी को साजे। जी। तो इन्होंने जो कहा है कि मुझे कोच की ज़रूरत है, तो कोच का मतलब पहला तो यह है कि मुआलिज की ज़रूरत है, और मुआलिज जो होता है वो रोशनी करता है, वो रास्ता दिखाता है, और जब फिर मरीज़ बहाली पाता है, बेहतरी की तरफ चलता है, तो वो तालियां भी बजाता है, वो हौसला अफजाई भी करता है, वो 2 in 1 होता है। नॉर्मली जो हौसला देना या तसल्ली देना, सपोर्ट करना, ये फैमिली और दोस्तों का काम है। लेकिन सर हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं लिबासे खिज़र में इधर, तो ये पहचानना तो बहुत ज़रूरी है कि कौन आपका कोच बन सकता है, कौन क्वालिफाई करता है। तालियां सही रवैयों पे बजाई जाएं तो ज़्यादा नेचुरली सही रवैयों पे ही बुझाई जाए, लेकिन आपने वो जो सिलेक्शन की बात की है, तो ये तो कोई आजकल के ज़माने में तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि सोशल मीडिया का, इंटरनेट का ज़माना है। आप बड़ी तेज़ी से पेनिट्रेट करते हुए अपने टारगेट तक यानी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जो गैप था वो बहुत श्रिंक कर गया, बहुत छोटा हो गया है। आप पूछ सकते हैं, चैट GPT से पूछ सकते हैं, उसको सारा पता होता है। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, उनको सारा पता होता है। तो मतलब ये है कि तलाश कितनी आसान हो गई है। देखिए ना, पहले मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 40-50 साल पहले डिक्शनरी में हम लफ्ज़ ढूंढा करते थे जी। उस सफ़े तक पहुंचने में टाइम लगता था जिस जगह
وہ لفظ لکھا ہوتا تھا. آج میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ بہت بلیسڈ ہو. مجھے کوئی ٹاپک کوئی چیز کا پتہ کرنا ہوتا تھا, میں کتابیں ڈھونڈتا تھا جا کے, اور کتابوں کے صفحے تلاش کرتا تھا, اور پھر انڈر لائن کرنا, پھر انڈر لائن صحیح کرتا تھا, جگہ اس کے پہنچنا. نوٹس بنانا, پھر اس کو کرنا. میں نے کہا اب تمہارے پاس تو ہاتھ میں کتاب لے کے پھرتے ہو, اور تمہیں تو دنیا جہان تمہارے, لیکن فوکس نہیں ہو. دیکھیں اصل بات تو ول کی ہے, جسے ول پاور لوگ کہتے ہیں. ارادے کی بات ہے, ارادے سے کام شروع ہوتا ہے. یہ کام پہلا گیئر ارادے سے ہی لگتا ہے, لیکن پھر ہنرمندی بھی چاہیے. لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے جب چاہیں بہت اچھا کام لے سکتے ہیں. نہیں, جب وہ خود بہترین ہوں گے تو چیٹ جی پی ٹی سے اچھا کام جیسا لے سکتے ہیں. کویشچن کریں گے آپ, اٹ از اے کویشچن دیٹ ول ڈیسائڈ. آپ نے کویشچن جیسا کیا, چیٹ جی پی ٹی نے ویسا جواب دینا. تو جیسے جو اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان سے چلتے ہیں جی, کسی بہتر جگہ چلتے ہیں, یہ بہتر جگہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں پاکستان بہترین جگہ ہے, پر وہ بہترین لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے. پہلے خود بہترین ہونا چاہیے. جو آسانی مانگنے والے لوگ ہیں, جو ہر وقت آسان راستے ڈھونڈتے ہیں اور چیلنجز سے بھاگتے ہیں, جگاڑ کی تلاش میں ہوتے ہیں, جگاڑ کی تلاش میں ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس مسئلے کو ابھی حل کریں گے 10 سال کے بعد اور ایک اور مسئلہ گلے پڑا ہوگا. جو لوگ پردیس جاتے ہیں, جن کے بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں, وہاں سب سے بڑی مشکل جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ یہ بات ماننے سے انکاری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بچے ہیں. اسٹیٹ ان کو اپنا بچہ کہتی ہے, وہ ریاست کے بچے ہیں, اور یہ بڑی مشکل اور دقت پیدا کرتی ہے ان کی زندگی میں کہ ان کی نسل در نسل جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کا خیال کرنا ہے, ان کی تربیت کرنی ہے, ان کے لیے اچھی راہیں تراشنی ہے. لیکن وہاں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم انڈیپینڈنٹ ہو, اور وہ تم جو چاہو کر سکتے ہو. تم چاہے رات کو 3 بجے واپس آؤ, چاہے نہ واپس آؤ, تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. ریاست جو وہاں کی ہے, جیسے برطانیہ کی یا امریکہ کی ریاست, وہ بچوں کو والدین کی نہیں اپنی ملکیت سمجھتی ہے, اور ریاست ان کو انڈیپینڈنس دینا چاہتی ہے جو کہ ایکچولی جانوروں کے بچوں کو حاصل ہوتی ہے. جانوروں کے بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ انسانوں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, پھر وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, یا ہو جانا چاہیے. اور اگر وہ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ماں باپ اور بچے دونوں روگی ہو جائیں گے. لیکن یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس طرح ہونا چاہیے, لیکن یہ اتنی بڑی پرابلم ہے کہ ریاست اس بات آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہے, اور بہت بہت بڑی ریاستیں جو انہوں نے کہ بہت بڑے فلسفے ایجاد کیے ہیں وہ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے. نہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, ٹھوکریں کھا کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تو نہایت خاموشی سے ایک گڈ سائیڈ پیدا ہو رہی ہے, جسے ہم کہتے ہیں گڈ سائیڈ آف امریکہ یا گڈ سائیڈ آف یو کے, کیونکہ ان کی گڈ سائیڈ, بیڈ سائیڈ, اگلی سائیڈ سب کچھ موجود ہے. ہمارا تو ملک شیک ہے, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہماری گڈ سائیڈ کیا ہے, ہماری بیڈ سائیڈ کیا ہے, اگاڑا کیا ہے, پچھاڑا کیا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ دیکھیں ادھر نشہ کرنا کتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں علیحدہ کمرے دیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سیف جو ہے نشہ کریں. یہ ابھی ریسنٹلی جو یو کے نے کیا, مطلب یہ جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے پروسیس, میں آپ کو بتاؤں کہ اچھائی کی قوتیں اور برائی کی قوتیں ساتھ ساتھ اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہیں. مثال کے طور پر امریکہ میں تجربات کیے جا رہے ہیں کہ کھانے کو زیادہ سے زیادہ مزیدار کیسے بنایا جائے, کیسے لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چپس کھائیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ سائنسدان تجربات کر رہے ہیں کہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی غذا کی طرف کیسے آپ رجوع کریں, کیسے پرسسٹنٹلی آپ اس راہ پہ چلیں. تو ان کا خیال ہے کہ دونوں دکانیں ہونی چاہیے. ان کا خیال ہے کہ جس کو جو سودا چاہیے وہ جا کے جہاں سے ملتا ہے وہ خرید لے. لیکن ریاست کی ایکچولی یہ ذمہ داری نہیں ہے. ریاست جیسے کہتی ہے نا کہ سیٹ بیلٹ باندھو, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈسپلن کرنا,
डिसिप्लिन करना, रियासत कहती है कि अपने साथ की सीट वाले की भी सीट बेल्ट आपने बंधवानी है, नहीं तो आपको $500। लाइन पकड़नी होती है। रियासत को कई लाइनें पकड़नी अनबाइस्ड होती होना हैं। चाहिए। रियासत को ये देखना है कि वो भले के कामों में आज़ादी दे, क्योंकि कोई भी रियासत मादर पिदर आज़ादी तो नहीं दे सकती ना। आप जितने भी सिविलाइज्ड मुल्क में चले जाएं, वहाँ एक तरफ वो बहुत मादर पिदर आज़ादी देते हैं, तो दूसरी तरफ कहते हैं टैक्स देना पड़ेगा। कानून की हुक्मरानी वो कहते हैं ये सड़क यहीं से पार करनी होगी, स्पीड ज़्यादा नहीं करनी, सीट बेल्ट बांधनी है। तो ये जो रियासत इस तरफ से एडवांस कर रही है तो ये बहुत बेहतर है। लेकिन जहाँ रियासत कहती है कि लड़की की लड़की से शादी हो सकती है, लड़के की लड़के से शादी हो सकती है, तो ये मेरा ख्याल है कोई वहाँ साइंसदान है जो तजर्बात कर रहे हैं कि इससे क्या निकलता है। और ये बदल जाएगा, बहुत जल्द बदल जाएगा, क्योंकि मैंने हर कोना खुदरा वहाँ देखा है। मैंने बहुत खूबसूरत साइट भी देखी है मगरबी ममालिक की, और हम लोग जो हैं वहाँ की जो खूबसूरत साइड है उसको प्रोब करके पता करके वहाँ से जो इल्म के ख़जाने हम हासिल करते हैं वो एक नेमत है और रहमत है। और मैं आपको बताऊं कि ख़ुद अमेरिका में जो गुड साइड है, जहाँ इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के नुस्खे तैयार किए जाते हैं, ख़ुद अमेरिका उनसे इतना वाकिफ़ नहीं है। ख़ुद अमेरिका के लोगों को नहीं पता कि एक रियासत में जो अच्छा काम हो रहा है वो दूसरी रियासत वालों को पता नहीं होता। और जब आप एक मिलते हैं, जैसे मेरे जैसा बंदा जो जिसकी सारी ज़िंदगी गुज़री इस सैर व सियाहत में कि पता करें कि अमेरिका में बेहतरीन चीज़ कहाँ पैदा होती है, कहाँ क्रिएटिव लोग बैठे हैं, कहाँ जो है साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली आज से 35 साल पहले कि मुझे पता चल गया कि अमेरिका की गुड साइड को कैसे तलाश करना है, कैसे ऐसे अदारों तक पहुंचना है कि जो क्रिएटिवली दुनिया के निजात दहिंदे के तौर पर काम करते हैं। और एक सरकारी दौरे में मुझे जो कि USIA के प्रोग्राम के तहत हुआ, जिसमें अमेरिका के सफ़ीर की तरफ से दावत मिली और मैं गया, वहाँ हर साल दुनिया भर से 18-20 लोगों को बुलाया जाता है। और ये तकरीबन 135 साल से ये सिलसिला जारी है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से एक एक दो दो बंदे बुलाते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं, फिर वो जिस शोबे से मुतल्लिका होते हैं उनको अमेरिका के वो बेहतरीन अदारे बताते हैं। वो बताते हैं कि कहाँ बेहतरीन काम होता है और आपको एक्सपोज़ करते हैं उस बेहतरीन काम के साथ। और ये उनके टैक्स पेयर के पैसों से ये सारे दौरे ऑर्गेनाइज़ होते हैं। और हर दूसरे दिन वो एहसास दिलाते हैं कि तुहानू पता है ए अमेरिका दे टैक्स पेयर दी आमदनी है, तवज्जो करो। और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि अमेरिका में किस कदर अच्छे काम भी हो रहे हैं और किस कदर अहमकाना काम भी हो रहे हैं। की चाहत होगी आप अटैच हो जाएंगे उसके साथ ही नेचुरली। वो जिसे कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपको पता है विलिंग वेज का नाम इसमें से निकला हुआ है। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जब आपको पता चल जाता है, जब आप रास्ता खोजने निकलते हैं, जब आप कदमों के निशान देखते हैं, तो आप बहुत ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो अदरवाइज़ शायद आपने नहीं देखनी थी। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में 1991 का जो दौरा था, जिसके बाद फिर मैं हर साल 2-3 दफ़ा जाता था और वहाँ के बेहतरीन लोगों को शैडो करता था। यानी उनके साथ मैं 5 दिन गुजारता था और 5 दिन में मैं समझ जाता था कि मुझे क्या हासिल करना है और मैं हासिल करता था। फिर कभी इस पे बात करेंगे। लेकिन ये जो परपेचुअल कोचिंग है जो वो आपको फिर काम करने में बहुत मदद देती है। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं इस नीयत से कि आपने उसका अमली तौर पर काम करके उसका प्रदर्शन करना है, कोई इम्तिहान दे के तो उसको आपने कुछ डिग्री या कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं करनी, तो आप बड़े रिलैक्स होके सीख रहे होते हैं। जी। तो मैं चूँकि पाकिस्तान में 50 साल पहले
जो रिहैबिलिटेशन का काम है वो सबसे पहले मैंने शुरू किया था, तो फिर मेरे अंदर एक ना बुझने वाली प्यास थी जो मुझे दुनिया की बेहतरीन जगहों पे लिए फिरी, और मैंने पता चलाया कि कहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हो रही हैं, कहाँ लोग जो हैं नताइज पैदा करते हैं। क्योंकि अगर हम जो कुछ भी काम करते हैं अगर वो मेजरेबल नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी नहीं आप कर सकते, नताइज को आप सामने नहीं रख सकते, तो फिर उस काम से हमारा क्या लेना देना। सही। तो वो जो कोच की बात हम कर रहे थे, तो कोच होने के लिए आपके अंदर राह दिखाने की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन असल बात है कि क्या आप क्लैप कर सकते हैं। यानी जब आप किसी को बदलते हुए देखते हैं, जब खिलते हुए देखते हैं, तो क्या आपका दिल खिलता है उसके साथ, क्या आपके अंदर कोई ग्रोथ महसूस होती है। ये है वो असल बात जो कि एक कोच के अंदर होती है कि वो राह भी दिखाता है और वो तालियां भी बजाता है और लोग कनेक्ट करते हैं उसके साथ। ही हैज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल। सबसे पहले उसको मोतबर होना पड़ता है, यानी काबिल एतबार होना पड़ता है। ये पहला है मामला कि जिसके साथ आपने बात करनी है क्या वो आप पे एतबार करेगा, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी है वो असल चीज़ है कि जब आप बात करते हैं तो वो काबिल एतबार होनी चाहिए, आपके ऑडियंस के लिए काबिल एतबार होनी चाहिए। अगर आप बात करने से पहले थोड़ा सोच लें कि दूसरा इस बात पे एतबार करेगा कि नहीं करेगा, तो आप इससे फैसला कर सकते हैं कि आपको बात करनी है कि नहीं करनी। ये तो काबिल एतबार ही होती है, तो ऑथेंटिक बात ही हमें जो रिसर्च बेस्ड हो, जो प्रूवन हो, वही आपके एतबार। ज़रूरी नहीं, तो ज़रूरी नहीं आप किसी गांव देहात में किसी बंदे को भेज दें जो अमेरिका का साहब हो और निकर पहन के तो देहात में जाके उनको बताए कि जो फसलें हैं उनके अंदर काश्त कैसे की जाती है और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हासिल की जाती है, तो लोग नहीं सुनते उसकी बात। सर क्रेडिबिलिटी देखें, क्रेडिबिलिटी एक तो बंदे की अपनी वो है क्रेडिबल होना, लेकिन वो प्रूव जब उस वक्त होती है जब आप किसी के साथ कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन असल चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि मैं वो बचपन में रेडियो पे प्रोग्राम सुना करता था निज़ामुद्दीन, तो आज की जनरेशन को शायद उनका ज़्यादा पता नहीं होगा, तो वो पंजाबी में प्रोग्राम होता था और मंडियों के भाव भी सुनाते थे, फिर फसलों के बारे में बात करना और इस तरह की बातें करना कि कैसे फसल ज़्यादा हासिल की जाती है। तो मैं वो प्रोग्राम सुनता था क्योंकि मेरे ख़ानदान में ये जो काश्तकारी का पेशा, मेरे वालिद जो है वो एक किसान थे। तो मैंने एक दफ़ा उनको कहा कि बाजी ये आप सुना करें, ये जो निज़ामुद्दीन प्रोग्राम है ना, इसमें वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं कि कैसे आप ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं और अपनी फसल की ज़्यादा कीमत लगवा सकते हैं। तो उन्होंने डिसमिस कर दिया, कहते हैं इन्होंने की पता हो, इन्होंने की पता हो, हमें रेडियो पे बैठ के गल्ला कर छड़। तो मतलब उन्होंने एतबार नहीं किया। हालांकि वो जो प्रोग्राम होता था उसके पीछे जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली ऐसे लोग होंगे जो कि नॉलेजेबल होते हैं। और फिर जो मैंने पता किया बाद में, एक वक्त मुझे ख्याल आया पता करूं वो कौन करता था, तो वो प्रोग्राम जो है उसके पीछे फैसलाबाद की जो ज़राई यूनिवर्सिटी है वहाँ का एक डिपार्टमेंट था जो उस प्रोग्राम के लिए रिसर्च देता था, करता था और टिप्स देता था। तो क्रेडिबिलिटी पैदा करने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है, आपको जिसके साथ बात करनी है उसके लेवल पे उतरना पड़ता है। आपको पता है लोग घरों में जब अपने मुलाजमों से बात करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा गिला होता है कि यार समझते कौन नहीं, अड्डियाँ बेवकूफ़ियाँ क्यों मार देने। तो बंदा सोचे अगर थोड़ा कि अगर आप उनके लेवल या तालीम या उनकी समझ बूझ पे गौर करें तो फिर आपको उस दर्जे नीचे उतर के उनके साथ जब बात करेंगे और झुंझलाएंगे नहीं तो वो बात असर करेगी। लेकिन अगर आप पीएचडी हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको बहुत अच्छी बातें करने आती हैं, लेकिन आप अपने ड्राइवर के साथ या कुक के साथ जब बात करते हैं और वो आपकी बात बिल्कुल नहीं समझता, तो ये उसका कसूर नहीं है, ये आपका अपना कसूर है।
यानी वो उसके पास एक ऐसी पोजीशन है कि वो किसी का भी रुख चेंज कर सकता है, यानी कोई भी एक मोतबर शख्स जो है वो तो एक हजूम का रुख चेंज कर सकता है। बाज़ औक़ात लोग इसका बहुत मनफी इस्तेमाल भी करते हैं। कई दफ़ा लोग अवामुन्नास को बहुत मनफी मोटिवेशन दे के गलत राह पे भी डाल देते हैं और उससे बहुत नुकसान होता है अवामुन्नास को जब वो जोश में आके किसी के पीछे लग के किसी गलत डायरेक्शन में या किसी गलत चौक में पहुंच जाते हैं और उससे फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो ये जो मोतबर का मतलब है जिसका एतबार किया जाए, तो ज़रूरी नहीं कि हर मोतबर अच्छा भी हो, ज़रूरी नहीं कि हर मोतबर दुरुस्त भी हो। बहुत दफ़ा लोग ऐसे भी होते हैं जो उकसा के लोगों को नुकसान के रास्ते पे डाल देते हैं और ये दुनिया में बहुत कॉमनली देखने में आता है। लोग इतना ज़्यादा लोगों को अच्छी राह पे डालते हुए दिखाई नहीं देते जितना कि बुरी राह पे डालते हुए दिखाई देते हैं। और आप अगर देखें तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात ज़रूर होंगे कि जिनके नतीजे में किसी ने उकसाया, उसने कोई थ्योरी पेश की, उसके अंदर कोई एतबार पैदा किया और उसको फिर अदाद व शुमार से जोड़ा और उसको किसी इखलाकी कदर से नाजायज़ तौर पर कनेक्ट किया और लोगों को मोटिवेट कर दिया। बेस पे कि जो कह रहा है उसके साथ कोई जज्बाती वाबस्तगी है या उसको देखिए, अगर आप किसी भी बंदे को किसी इखलाकी कदर के हवाले से कायल कर लेते हैं किसी मामले के बारे में, तो आप उसके हाथों मर्डर भी करा सकते हैं। यानी सख्ती करना, नाजायज़ तशद्दुद करना, ये तो अलग बात है, लेकिन किसी नज़रिए के ज़ोर पर आप किसी अच्छे भले मानस को जो किसी मामूली परिंदे को या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था, आप उसके हाथों इंसानों का खून बहा सकते हैं। इसकी एबिलिटी होती है कि वो पैराडाइम शिफ्ट कर दे। ऐसे बड़े साइंसी तजर्बात हैं कि जिसमें लोगों को उकसा के उनके हाथों बहुत सारे गलत काम कराए गए। आपको पता है जो 302 का कानून ये है कि जिस तरह कत्ल करने वाले को 302 का सामना होता है, तो उसको उकसाने वाले को भी 302 का ही सामना होता है और मौके पे मौजूद होना भी उसका ज़रूरी नहीं होता। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि किस हिकमत के तहत ऐसा किया गया है, क्योंकि जो उकसाना है ये एक बड़ा ताकतवर टूल है। बीज तो बो दिया और जिस बंदे से वो बात कर रहा है, अगर वो फ़ैन है, बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा होते हैं आप अडियाला की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अडियाला की बात नहीं कर रहा। आप अभी ब्रेक का टाइम नहीं आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत हर सियासी रहनुमा, मैंने इस पे बाकायदा रिसर्च की है, 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, सब सियासी रहनुमा होते हैं जिनके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर हुक्म करें, आप जो कहेंगे हम वो कर गुजरेंगे। इसी को कल्ट फॉलोइंग कहते हैं। और हर सियासतदान की कल्ट फॉलोइंग होती है, कुछ की ज़्यादा कुछ की कम। ये कोई एक नहीं है। एक जो बहुत बढ़ चढ़ कर सामने अगर कोई नज़र आता है तो वो भी है, लेकिन जो बाकी दीगर लोग हैं उनके पास भी इनफ ऐसे लोग होते हैं जो मरने मारने पे तुल जाते हैं, जिसे वो कहते हैं कि वो सियासतदान के इशारे पे, क्योंकि सियासतदान के पास वो पावर होती है, प्रीचर्स के पास वो पावर होती है कि वो मोटिवेट कर सकते हैं, बेग बारो और स्टील पे, किल और बी किल्ड पे मजबूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये किसी एक की तरफ इशारा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला अगर किसी को ऐसी पावर देता है तो उसे हज़म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरों का भला या बुरा सोचना उस बंदे की बहुत बड़ी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो लोगों को कन्विंस कर सकता है। साथ की जिम्मेदारी उसकी है। तो हम ब्रेक पे चल के वहाँ से वापस आएँ, तो एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी और वापस आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं।
लेकर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। 3, 2, 1 हो गया। हम वापस आ गए इस सवाल के साथ कि ये जो सुहेल अहमद साहब का मसला है, इसमें एक असल चीज़ जो नज़र आती है कि ये जो दोस्तों के साथ उनका ताल्लुक़ है, जो ओरिजिनली कुछ हवारी से हम दोस्तों की तरफ आए, तो अब नए दोस्त वो कैसे बनाएं जो कि वाकई दोस्त हों, वो जो पिछले हैं उनको कैसे बदलें। और ये जो एक ऐसा चेंज सा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल एक ज़िंदगी को चेंज होने की तरफ लेके आना है, तो इसमें एडजस्टमेंट के मसाइल तो होते हैं और ये एक नया नॉर्मल है, तो उसको अडेप्ट करने में कोई इंसान जो है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी कभी कभी महसूस नहीं करता। देखिए, जो दोस्तों का मामला है ना, बाज़ औक़ात दोस्तों की भी एडिक्शन होती है, या आप उसे अक्सर औक़ात कह सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नशा शायद चरस, शराब या इन चीज़ों का नाम है। नशा हफ्त रंग है, मतलब नशा बदनाम भी है, जैसे चरस, शराब, अफ्यून और कोकेन, और नशा बदनाम भी है इस लिहाज से कि उसमें और बहुत सारी आते हैं, जैसे कि इनफिडेलिटी की आदत, तो ये बड़ा बदनाम वाला मामला है। लेकिन नशा नेक नाम भी है, जिसमें लोगों को सोशल वर्क करने का नशा होता है, कारोबार करने का नशा होता है, वर्कaholic होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोगों को बाज़ औक़ात तबलीग का नशा हो जाता है कि वो हर एक बंदे को पकड़ पकड़ के वो तबलीग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो नशा होता है न्यूट्रल भी होता है, जैसे कई लोग खाना पीना ये वो हर चीज़ करते हैं। तो नशा तो हर किस्म का होता है। तो जो दोस्त होते हैं ये भी पार्ट एंड पार्सल होते हैं किसी की एडिक्शन का। और जिसको ड्रग्स का नशा होता है तो उसको खाली ड्रग्स का नशा नहीं होता, उसको अपने दोस्तों का भी नशा होता है। जी, इस तरह का है कि वो कहते हैं कि हमें बदनाम यारों शराब नशा सजना जाता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम अगर गौर करें तो किसी न किसी तरीके से दोनों तरफ आग बराबर लगी होती है। हम लोग स्टैंड्स लगाते हैं कि इलाज के फ़ौरन बाद कुछ अरसे तक अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलना और उनसे माजरत कर लेनी है। लेकिन कुछ लोग हमेशा रेड जोन में रहेंगे, जो कि आपके हिकमत अमली होगी, वो बेवफाई नहीं होगी। नेचुरली आप जो कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, और इसीलिए एहतियाती तकाज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम जैसे नशे से दूरी के लिए इक़दामात कर रहे होते हैं, तो हमें शुरू में ये इक़दामात भी करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों के साथ नशे की ज़िंदगी हम गुजारते थे उन लोगों से कुछ अरसे के लिए दूरी करें, और अगर फिर भी हमें उनकी याद आए तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये पैगाम, बहाली का पैगाम, सोब्राइटी का पैगाम उन लोगों तक उस वक्त लेके जा सकते हैं जब हम ख़ुद रूहानी तौर पर बेदार हो चुके हों, और फिर हम उनके पास बहाली का पैगाम लेके जाते हैं जो अब भी तकलीफ़ में है। ये जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदम है दुनिया में, जो एक तंजीम है जो नशे से फलाह पाने वाले मिलकर चलाते हैं, और उनका ये जो 12वें कदम का पैगाम है वो ये है कि जब आपने रूहानी बेदारी हासिल कर ली तो फिर आप उन लोगों तक पैगाम पहुँचाते हैं जो अब भी तकलीफ़ में हैं। तो लेकिन ये एकदम शुरू में करने वाला काम नहीं, ये जब अपनी बहाली को आप कुछ मजबूत बना लेते हैं, आपको क्रेविंग्स नहीं होती और आप अपने अंदर एक
ख़ास तब्दीली ला चुके होते हैं जिसमें आप पुरसुकून रहते हैं, मुतमिन रहते हैं, तो फिर आप अपने मुआलिज के ये तो मशवरे जब से ऐसा कर सकते कंसोलिडेट हैं। हो जाए तो तब है, अदरवाइज तो दे कैन बी ल्योर्ड। और जो आपके हवारी या दोस्त जो होते हैं वो काफ़ी ताकतवर होते हैं इस मामले कि आपको वो कहते हैं कि अन्ना चंगा होना भी ठीक नहीं। देखिए मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए जी। आपको हक हासिल है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो दोबारा आपको नशे की दुनिया में खींच सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो बहाली है या सोब्राइटी है ये थोड़ा सेल्फिश होना भी मांगती है। अदरवाइज़ मैं सेल्फिश होने के बारे में बहुत ख़यालात सख्त रखता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, विन विन होने चाहिए मामलात। लेकिन आप नए दोस्त क्यों नहीं बना लेते? दुनिया में आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनमें कोई ना कोई खूबी आपसे बढ़कर होती है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को दोस्त बनाया है कि जिनमें हमेशा मुझसे बढ़ के खूबियाँ होती हैं। हत्ता कि मैं जब अपने साथ लोगों को काम करने की भी दावत देता हूँ या लोग आते हैं जॉब के लिए, तो मैं उनमें कोई ना कोई ऐसी बात तलाश कर रहा होता हूँ जो बचपन मुझसे के बढ़ दोस्त के किधर से मिलते हैं? जो बचपन की दोस्ती का हम हमेशा सुनते हैं, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ये आप उन्हीं से ये ऑर्गेनिक होते हैं ना, मतलब जहाँ मतलब कुर्बत हुई, क्लास में Underwear जो साथ friend। बैठता था या मोहल्ले में कोई था या कोई फर्स्ट कज़न था, ये मेरिट के बगैर होते हैं। एग्जैक्टली। असल में दोस्त ये होते हैं कि जो मेरिट के साथ आप आगे चलते हैं। अब ये बात बड़ी अजीब सी वैसे लोगों को लग रही होगी कि दोस्ती में क्या मेरिट सर? दोस्ती होती नहीं, दोस्ती की जाती है। लेकिन दोस्त लोग समझते हैं कि दोस्ती हो जाती है, जैसे मोहब्बत हो जाती है, ये की नहीं जाती। तो नहीं, आज के ज़माने में हर काम किया जाता है। जो काम हो जाए सोचा समझा मंसूबा होता है आपके साथ। सोचा समझा मंसूबा होता है जिसके तहत ये काम आप करते हैं। तो अगर आपको पता हो या किसी बंदे को पता हो कि किसी बीमारी से उसकी निजात हो सकती है फ़कत इस वजह से कि वो चंद दोस्तों को छोड़ दे, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग मान जाएंगे। कोई कैंसर का मरीज़ अगर उसे बताया जाए कि भाई आप ये 6 लोग हैं आपके जो दोस्त, इनको अगर आप छोड़ देते हैं तो आप कैंसर से शिफा याब हो जाएंगे, तो 1 मिनट नहीं लगाएगा। लेकिन नशे की बीमारी में चूँकि डिनाइल होता है, लोगों को इस बीमारी की ख़तरनाकी का या डेप्थ का पता नहीं होता, बीमारी ही नहीं होती वो, लोग इसको बीमारी ही नहीं मानते। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव होता है कि बंदे ने छोड़ना तो दिल से होता है, तो दोस्त छोड़ने से या जगह छोड़ने से उनके ख्याल में ये होता है कि इससे कोई तेरा फर्क दिल नहीं तो पड़ता। है सनम आशिना, देखा ये मिलेगा एक मिथ है, मतलब दिल में ही तो सारी बदनीति छुपी होती है जो कहती है कि तुम सचमुच में अपनी तकलीफ़ का सामना नहीं करो बल्कि ये जुगाड़ कर लो। क्योंकि हर इंसान जो है वो उसके साथ एक ओरिजिनल पेन जुड़ी हुई है। ओरिजिनल पेन हम कह रहे हैं कि जब से इंसान इस दुनिया में आया उसको कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, वो अपने आप को बेहतर बनाता रहता है और ये दुख ही उसको मजबूर करता है चैलेंज बन के कि तुम अपनी इस सिचुएशन को बेहतर बनाओ या उस सिचुएशन को बनाओ। जब इंसान जंगल के ज़माने में था तो उसको रोटी के लाले पड़े रहते थे, उसको शेल्टर नहीं मिलता था, उसको सर्दी गर्मी से मुश्किलात होती थी। तो ये जो चैलेंजेस थे इन्होंने उसको मजबूर किया कि कुछ भाग दौड़ करके, कुछ सोच विचार करके अपने मामलात को ठीक करो। लेकिन वो एक मामले को ठीक करता है तो एक और मामला उभर कर सामने आ जाता है। जैसे वो कहते हैं ना कि जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मुझे एक तो मैंने देखा। सर चैलेंजेस तो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। ये अच्छी बात है, आगे बढ़ने में मदद देते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जैसे चैलेंजेस पहले लोगों को थे, 100 साल पहले थे जिससे वो मुतमिन नहीं थे, तो आज भी लोगों को चैलेंजेस हैं कि जो लोग मुतमिन नहीं, और 1000 साल पहले भी थे। जी हाँ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि अगर हमें कोई चैलेंज है तो क्या ये बेहतर है कि हम नशे का जुगाड़ करें या उस चैलेंज की आंखों में आंखें डाल के देखें और उस चैलेंज का सामना करें और उस मसले को हल करें। इसी तरह ये जो नशे से जो रिलैप्स होते हैं या
किसी भी बुरी आदत को वापस लोग अपनाते हैं तो उसकी क्या वजह होती है कि लोगों को कोई बेचैनी का सामना होता है तो क्रेविंग शुरू हो जाती है, कोई डिप्रेशन का सामना, कोई गुस्से का सामना या बोरियत का सामना होता है। तो वो बोरियत को हेड ऑन क्यों नहीं लेते, बोरियत को पहचानते क्यों नहीं? बोरियत का मतलब नशा नहीं है, या बोरियत का मतलब बर्गर नहीं है, बोरियत का मतलब पिज़्ज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपको डिप्रेशन हो रही है तो आप उससे तवज्जो क्यों हटा रहे हैं कि मैं शॉपिंग कर लूँगा तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगी? या लोग इस तरह के जो जुगाड़ करते हैं, तो क्या वो किसी ऐसे मौके पे सोच सकते हैं कि वो अपने जज्बात को पहचान लें, जिसे हम इमोशनल लिटरेसी कहते हैं? क्योंकि जब हम अपने जज्बात को पहचानते हैं तो फिर हम उनका कुछ अजाला भी कर सकते हैं, उनकी कुछ मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जज्बात को तो लोग ज़्यादातर पहचानते ही नहीं। अच्छा जज्बा, बुरा जज्बा, खुशी का जज्बा, गम का या गुस्से का जज्बा या नदामत का जज्बा। पर साइंस कहती है कि जज्बात तो 252 किस्म के होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि साइंसदान बन के आप सारे जज्बात के बारे में जानें, लेकिन जैसे हमें और अलूम के बारे में तवज्जो दिलाई जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो कोई मज़मून होना चाहिए कि जज्बात के बारे में भी जहाँ इंसानों को तालीम दी जाए। जैसे बेशुमार सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं और बाज़ औक़ात तो बहुत ही बेमानी सब्जेक्ट्स अभी तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। तो बेहतर यह है कि लोगों को तामीरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, लोगों को जज्बात के बारे में कोई तालीम दी जाए। आपको ये सुन के हैरत होगी कि जज्बात के बारे में जितनी भी तालीम है ये सारी पिछले 30 साल में डेवलप हुई है। तो जितनी खूबसूरत डेवलपमेंट्स पिछले 50-60 साल में हुई हैं, इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट्स पिछले 5000 साल में नहीं हुई। तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि हम एक बहुत ब्लेस्ड एज में रह रहे हैं। तो जो मेरे मोहतरम दोस्त हैं जिन्होंने हमें ख़त लिखा है, सुहेल अहमद साहब, तो उनको हम यही कहेंगे कि इसे एडवेंचर के तौर पर लें, नए दोस्त बनाएं। जब नए दोस्त बनाएं तो उनमें कोई ना कोई खूबी अपने से बढ़ के देखें। ज़्यादातर लोग जब दोस्त बनाते हैं तो वो अपने से बढ़ के खूबी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको उससे थोड़ी शेम फील होती है। लोग चुन के ऐसा बंदा दोस्त बनाते हैं कि जिसे देख के ज़रा तसल्ली रहे, अपना ज़रा टहका रहे। तो ये फिर इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। अगर हम दोस्त बनाते हुए, जब हमें अल्लाह मौका जो देता है चुनने का, देखिए हमें बहन भाई चुनने का मौका अल्लाह नहीं देता, ठीक, लेकिन दोस्त चुनने का तो मौका देता है। तो जहाँ आपको चॉइस दी जाए वहाँ आपको हमेशा उसको वेलकम करना चाहिए। हाँ, जहाँ चॉइस नहीं मिली वहाँ सब्र करना भी अच्छी बात है, वहाँ उसको कबूल करना भी अच्छी बात है। क्योंकि जब आप हाँ कहते हैं तो दुनिया में कामकाज शुरू होते हैं, लेकिन जब आप ना कहते हैं तो वो अपने अरूज को पहुँचते हैं। तो हाँ करना और ना करना, ये नशे की बीमारी से बहाली में बहुत दो अहम बातें हैं जो सीखने की ज़रूरत है कि कब हाँ कहनी है और कब ना कहनी है। अगर सिर्फ़ कोई बहाली पाने वाला या नशे से निजात का शौक़ रखने वाला सिर्फ ये सीख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कहना जो है और विदाउट बीइंग गिल्टी ना कहना बहुत मुश्किल काम मैंने है। इसको बहुत रिसर्च सीखने का अमल है ये। सीखने का अमल तो है ही, लेकिन रिश्तों में अगर किसी को आ जाता है ना तो उसकी रिलेशनशिप में बड़ी आसानियाँ आ जाती हैं। एक ख़ास तौर पर किसी दोस्त को उस मौके पे ना कहना जब वो आपको अल्योर कर रहा होता है, नशे की तरफ राग़िब कर रहा होता है, तो सर आपको लगता नहीं प्रैक्टिस है करनी कि पड़ती है। हमें छोड़ जाएगा अगर हमने इसने नो कहा तो? तो ये सारे पहलू आप बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं, बिकॉज़ देखिए इसको एक साइंस स्किल कहा कहती है है कि यस कहने वाले की निस्बत नो कहने वाले की इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ती है, उससे रिश्ता लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं। नो कहने, लेकिन नो कहना सलीके से, सलीके के बगैर नो नहीं। बदतमीज़ी से अगर नो कहेंगे तो फिर उससे तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को नो कहनी आ जाती है तो उसका वक़ार बुलंद होता है, उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। यहाँ पे पेशेंट्स को स्किल के ज़रिए जो चीज़ उनके लिए बेहतर नहीं है, हम नो कहते हैं उनको।
آپ یقین کریں ان کے ساتھ بہت اچھا تھیراپیوٹک ریلیشن ہوتا میں نے ہے. آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی پیشنٹ جسے نو کہا اور وہ جاتے ہوئے تھینک یو کہہ کے نہیں گیا، کیونکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں نا، آپ جو بہترین سمجھتے ہیں نا آپ وہی بات کریں. اگر آپ اس کے پیچھے لگ جائیں آپ کی عزت اس کی نظر میں فوراً نیچے آ جائے گی. لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ میرٹ صحیح پہ ہے ہے اور وہ میرٹ پہ ہے اور آپ اس پہ کھڑے رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ نشے کے مریضوں کی سب سے اچھی بات جو مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ ڈیل میکر ہوتے ہیں، یہ ڈیل بریکر نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے ہاتھ ملا کے ڈیل بنا کے چلنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑی سی نیک نیستی اس میں شامل کریں اور جو ان کا بھلا ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں اور پھر خاموشی سے پیار کی نظروں سے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، تو وہ آپ کو تھینک یو کہہ کے جائیں گے. نشے کے مریضوں کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ نشے کے مریضوں سے بہت بدکتے ہیں، وہ بہت دور رہتے ہیں ان سے، وہ ان کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اصل بات ہے کہ آپ کو کسی کی شخصیت کے بارے میں اس وقت تک بالکل پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ آپ اس کے قریب رہ کے اس سے تبادلہ خیالات نہیں کرتے، جب تک اس کا آپ انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں کرتے، جب تک آپ نان ججمنٹل نہیں ہوتے، جب تک آپ نان ریڈیکیولنگ نہیں ہوتے، آپ کسی نشے کے مریض سے کبھی بھی قربت قائم نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی محبت کا رشتہ نہیں بنا سکیں گے. جیسے ہم اگر بریک کی طرف جائیں اور پھر یہ سائنس کے اوپر کچھ مزید بات کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو کیسے بدلا جائے اور ایک فاصلہ، ایک مہذب فاصلہ وہ کس طرح سے مینٹین کیا جائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل لگتا ہے نہ کرنا. ایسے دوست کو یہ کہنا کہ میں اب ریکوری میں آ گیا ہوں، جس کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے کئی سال نشہ کیا، تو وہ پھر اس کی طرف سے ایسے تانے بھی آتے ہیں کہ ہم تو زیادہ نیک ہو گئے. مشکل سے تمہیں بھی بہت لگتا ہے نا نہ کرنا، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. آپ بھی ذرا سیکھیں اس معاملے میں کہ ذرا کبھی نہ کہنے کا موقع ہو تو کہہ دیا کریں، سر کچھ رشتوں کا اتنا نہ ڈرا کریں. وہ تقاضا ہوتا ہے کچھ رشتوں کا، کچھ رشتوں کا تقاضے تقاضا. آپ نے خود سے بنائے ہیں. نہیں میں تو کچھ بنایا نہیں، بنی بنائی شادی میں نے مل گئی. جی ایک وقفے میں چلتے ہیں تو واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے وہ، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے گلی محلوں میں سر ہوتا ہے کہ جاندی بہار دس آگے، تو یہ جاندی بہار کا آخری سیگمنٹ کی کچھ سوالات ہیں لیکن ہیں بڑے عام. وہ جیسے اسمبلی میں اسکولوں میں کہتے ہیں نا کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. تو یہ ایک تو سر یہ جو دوست بدلنا ہے تو مہذب فاصلہ کیسے رکھیں، اور دوستوں سے فاصلہ بنا لیا، اب اگر کریونگ ہو اور وہ جنون کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس میں پہلا رابطہ، پہلی پناہ وہ پھر کس سے لی جائے، وہ اس میں کیا کیا جائے؟ سر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے. ایکچولی ہمارا کنٹرول لوز ہو گیا ہوتا ہے، تو یہ کنٹرول کیسے حاصل کریں، وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا کنٹرول ہو. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دوستوں سے فاصلہ کرنا چاہتے ہیں یا دوستوں کو نہیں ملنا چاہتے تو یہ بے وفائی ہے اور بہت بری بات. یہ جو پہلو ذہن میں آتا ہے تو اس کے لیے پھر میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں صبح
कोई 6 बजे 7 बजे घर बुला लें, अपने नाश्ते पे बुला लिया, नाश्ते पे बुला लिया करें। आपने फजर के वक्त बुला ना करिए, बिल्कुल चले मज़ा नहीं आता सर, 9-10 बजे बुला सर लें। मज़ा नहीं आता। मतलब कहने का ये है कि ऐसी जगह बुला लें, ऐसे वक्त पे बुला लें कि जहाँ उस टाइम पे नशे के मामलात का वक्त नहीं होता सर या सुकून जगह का नहीं माहौल होना चाहिए, चिल देखें करने ना, के लिए। चिल करने का माहौल अच्छा, नहीं, रात के चिल जो नहीं 12 करना। बजे के बाद शुरू होता है, जब दुनिया सो रही होती है और हम जाग के। नहीं, उसमें अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी दोस्ती रखते हैं तो उसके लिए ये लिटमस सर टेस्ट है। दोस्तों को तो नहीं इस तरह नहीं देखे ना, दोस्तों को आजमाते नहीं है। आप अगर रात के 10 बजे उनको मिलने नहीं जाते और वो कहते हैं यार तू बेवफा हो गया है, जैसे कई दफ़ा लोगों की जब नई नई शादी होती है तो उनको बड़े ताने सुनने पड़ते हैं कि अब तुम्हारी बेगम आ गई है तो तुम हमें रात को 11-12 बजे नहीं मिलते। तो ये जो नशा छोड़ता है जिसे कहते हैं जी नेक हो गए उन तसीब, जैसे इसमें ख़त में भी है, तो आप उन्हें बताते हैं कि नहीं मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और आप ऐसा करें ना कि कल 8 बजे सुबह आएँ, बेहतरीन नाश्ता करते हैं हमारे घर पे और मेरे अम्मी अब्बा भी मिलके आपसे खुश होंगे, तो वो वहीं उसी वक्त बात डिसमिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उनको आपसे इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि वो सुबह उठ के आपके घर नाश्ते के लिए भी आ सकें। लोग ऐसे ही सरसरी बात करते हैं, हुन तो बड़ा आदमी हो गया, हुन तो फलाना हो गया, टमकाना हो गया, इस ये तरह क्या की। गिल्ट इंड्यूस कर रहे होते हैं? हाँ, कई दफ़ा लोग मुझे कहते हैं तुसी बहुत बिजी हो गए ना, ये हो गया ना, वो हो गया। मैं कहा किसने कहा है? वो कहते हैं नहीं बिजी नहीं। मैं कहा मुझे बताएं। कहते तुसी मिलते नहीं ना। मैं कहा तुसी मैनूं किहड़े वेले मिलन की गल कीती है तो मैं तुहानूं कहा कि जी मैं बिजी हाँ, मैं नहीं मिल सकता। मैंने कहा तो मैंने तो कभी भी किसी बंदे को जिसके साथ मेरा कोई बचपन का रिश्ता या वैसे मेरा कोई कज़न या मेरा कोई भाई या कोई भी रिश्तेदार अगर मुझे कहे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कब, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे बाद, नहीं तो मैं कहूँगा आज ही, अभी से ही, मतलब 2-1 घंटे के बाद। और कोई शादी ब्याह हो तो देखना पड़ेगा कि वहाँ जाना बनता है तो ज़रूर जाना है, खुशी गमी हो तो वहाँ भी ज़रूर जाना है। लेकिन ऐसे ही लोगों ने रस्म बनाई होती है कि अगर कोई बंदा नशा छोड़ रहा है, अगर कोई बंदा जो है वज़न कम कर रहा है और वो आपको कहता है कि मैं दावत में नहीं आ सकता, आप मेरे साथ चाय पी लें, वॉक पे चलें। नहीं, चाय नहीं पीनी, वॉक पे नहीं चलना, हमने सिर्फ जाके तो खब्बे खाने। तो इस चीज़ को दोस्ती का नाम देना डिस्गाइज करके तो वो तो मुनासिब बात नहीं है। तो आप उनको टेस्ट में डाल देते हैं। यानी जब भी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दोस्ती ये होती है, दोस्ती वो होती है, फ़लाँ चीज़ होती है, तो फिर आप उनसे सीधा सवाल कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मैं दोबारा नशा कर लूँ? क्या आप मेरी फ़लाह बहबूद चाहते हैं या आपको इससे कोई गरज नहीं है? वो कहते नहीं एक दिन में कुछ नहीं होता। तो फिर आप उठ के खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपना नुक्ता नज़र आपको बयान कर दिया। कहता गल तो सुन कितने चले हैं, तो इतनी देर में आप दरवाजे से निकल गए होते हैं, क्योंकि आपने अपनी जान बचानी है। आपने यहाँ बहुत ज़्यादा अखलाकियात में या उस चीज़ में नहीं पढ़ना, बल्कि आपने अपने आप को उस मुश्किल सिचुएशन से निकालना है। और कभी कभी आप ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं जहां आपका अपना दिल बेईमान होना शुरू हो जाए, तो फिर आपके पास कोई बंदा होना चाहिए कि जिसे आप कॉल करें कि मुझे रेस्क्यू कर लो, मेरी नैया डूबने वाली है। तो आपके पास हमेशा ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज से मेरी मुराद है कि जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, जब आपको क्रेविंग हो रही हो। तो ये तो पहले से तलाश करना होगा ना। जाहिर है जब आप को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप बंदोबस्त पहले करते हैं। पहचानना होगा। हाँ, पहचानना भी तो होगा ना सर। हाँ, बिल्कुल ऐसा करना होगा। लेकिन दोस्ती कैसे बनाएं नए लोगों से, अपने अंदर ये करेज कैसे पैदा करें, क्योंकि जो बंदा नशे से निकला होता है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किलात भी होती हैं। वो दूसरे शेम में लोग होता है। जो उसके बचपन के साथी होते हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे जा चुके होते हैं, वो कामयाबियों के झंडे गाड़े होते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारा जो रेफरेंस है वो अंदर के बजाय बाहर होता है, तो हम ऐसे लोगों से मिलने में मुश्किल महसूस करते हैं जो कभी हमारे साथ थे और अब हमसे आगे चले गए हैं। लेकिन जो पर्सनल एक्सीलेंस है, असल नुक्ता वो है कि आपके अंदर जो ख़मीर है
جب آپ اسے آنچ دیں گے تو اس سے کیا نکلے گا. اور ایک قدرت پہ اعتماد کرنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پہ اعتماد کرنا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں پر اعتماد کرنا، پر سب سے ہی بڑی بات یہ ہے کہ اس ذات پہ اعتماد کرنا جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو کامیابی دی اور آپ اس دنیا میں آئے. اور زندگی بڑی انمول اور قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے حفاظت میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جہاں سے بھی مدد مانگنی پڑے وہ آپ مانگیں. یہ کمزوری کی نہیں، یہ طاقت کی علامت ہے. تو مدد مانگنے کے لیے کریج چاہیے. یہاں ہے ول پاور کا استعمال کہ آپ نے کوئی سہارا حاصل کرنا ہے، کسی کی سپورٹ چاہیے تو اس آپ کے لیے اپنی will power use براہ کریں. راست ان سے بات کر لیں کہ مجھے آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے. میں نے اس وقت جو آپ کو کال کیا ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ تھوڑا صدمے سے دوچار ہے اور مجھے کچھ مشکلات کا سامنا ہے. تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے بڑے خیر خواہ ہیں، تو میں نے آپ سے بات کر کے صرف یہ چاہا ہے کہ آپ میری کچھ حوصلہ افزائی کر دیں، آپ میرے ساتھ کچھ سالیڈیرٹی شو کریں. میرے کئی دوست ایسے ہیں جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں کہ ان کو میں کال کرتا ہوں تو وہ ایک دم سے دھڑا دھڑ حوصلہ افزائی شروع کر دیتے ہیں. اور کال کے بعد میں پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا، میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرتا ہوں، کرج محسوس کرتا ہوں. اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے، تو مطلب اگر آپ نے دارو چھوڑنا ہے یعنی نشہ چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو اچھے انسانوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. یعنی بات سہیل احمد صاحب سے سٹارٹ ہوئی اور اس میں ہم نے نیا نارمل دیکھا، یہ دیکھا کہ اچھا کوچ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، پھر حوصلہ افزائی کرنے والے جو ہیں وہ ان کا زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے، پھر یہ سیفٹی پلان کی بات ہوئی اور یہ بات ہوئی کہ اگر آپ نے کسی ایسے دوست سے کو چیک کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی دوست ہے یا ہماری ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ صبح 9 بجے ناشتے کے اوپر امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے 7 انڈے، تو اگر آپ آ جائیں تو دیکھ لیتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ. تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کوئی جس کی اپنی علتیں جس میں ہوں گی تو وہ کہے گا کہ نہیں یار رات ہی ملیں گے تو باہر ہی ملیں گے. تو سر کا بہت شکریہ ان ساری باتوں کے لیے کہ جس سے کسی انسان کو رہنمائی ملتی ہے کہ وہ اپنی اس بیماری میں یا کسی بھی ایسی دوسری علت میں، جیسے ایڈکشن کی بات ہوئی تو وہ بہت ساری طرح کی ہے، تو کسی بھی علت سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو اس سے بڑا رہنمائی ملتی ہے اور آپ جب اس کو شیئر کرتے ہیں تو آگے لوگوں کو بڑی رہنمائی ملتی ہے. ڈاکٹر حماد رانا آپ کا بہت شکریہ، مش مالا بدول آپ کا بہت شکریہ، ناظرین کا بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حامی و ناصر.